So hello everyone, this is Sambhav and you're watching Entrance Investigation. Guys, आज के इस वीडियो में we are going to discuss ellipse. This is the part 2 of conic sections. Part 1 parabola revision checklist has already been uploaded on the channel. Do watch it. And now we're going to discuss ellipse. This is the part 2 of conic section. Part 2 of conic section. So do watch it. These videos would be beneficial for you in so as to revise these concepts of mathematics in a very easy way and very fast. So let's start. Okay, so first of all, let me discuss about the standard equation and the definitions. That is the basics. These are the basics, and in basics के दम पर you will move from the very basic mains level या J main level to the ultimate advanced level. Coordinate section is very simple, and I don't find any difference in the JEE mains level question or in the JEE advanced question. Although the approach would be different and the length of question can be determined as a different sort of thing in different examinations, that would depend on upon the examination, but still I would say that this is the time when you'll find that these things are near about related. So there is not much to do for advanced. Specifically in this chapter we'll cover maximum topics related to JEE mains. Some of the topics may or may not be covered. I don't find them that much relevant, taking in mind the previous year questions. So I had gone through them and found out that the material that I'm providing is more than sufficient for your quick revision and enhancing your skills in the subject. So I hope that you will guys would love it. Okay, so let me start the session now. So first of all, I would discuss a few properties about the locus of the ellipse. So ellipse is actually a curve that is formed when the locus of the point satisfies this criteria. I assume that this is my coordinate axis and these are my fixed points. This is a standard representation. If I consider any point h comma k, then I have this distance and I have second distance as well. Now I know that this distance, let's assume it to be d1, and this distance is d2. So from the locus of ellipse I can ensure the locus says that d1 plus d2 is a constant. This is the standard equation and this is the standard locus of the ellipse. Other than that, I can also get another thing, that distance of point h comma k, that is the locus from a focus. Okay, distance of a locus from a focus is equal to eccentricity times the distance of point from the directrix. The directrix, in fact I would say the corresponding directrix. Now why I am talking about the corresponding directrix, you guys would come to know when we'll discuss the this section in a typical manner. Okay, so we'll discuss it. Okay, so but the thing is that this is the standard conic representation. I would write this is the standard conic representation in the terms of the distance from focus and the distance from directrix, right? So the thing is that I am talking about this thing. Okay, so okay, so I was talking about this. ठीक है, सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूं कि मेरे पास ये चीज दी गई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनता है. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स. ओके, now this is actually drawn along the coordinate axis, so I would write this is along the coordinate axis, right?
So this is being the situation over here. Now this is talking about this stuff, that a square minus b square is equal to a square e square, where e is the eccentricity. So eccentricity is actually, what is eccentricity? Eccentricity is actually a kind of measurement of कर्वेचर, या कर्वेचर कितना मतलब कर्व्ड है, ठीक है। एक्चुअल में ये एक रफ आइडिया देता है कि हमारा कर्व कितना कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ या किसी भी हमारे स्टैंडर्ड सेंटर्स के साथ अलाइंड है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली ये लोकस पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये लोकस पे डिपेंड करता है, तो इससे हमें क्या पता चला कि यार जो ये इसेंट्रिसिटी है ये उसी कर्व के ऊपर, कर्व के लोकस को डिफाइन करती है, क्योंकि वो डिस्टेंसेस का मेजर है ना। तो इसेंट्रिसिटी चेंज होगी तो कर्व का डिस्टेंस किसी एक पैरामीटर में चेंज होता जाएगा, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट इट इन अ व्हाइल, ओके, हाउ दिस इज एक्चुअली अफेक्टिंग द थिंग्स ओवर हियर। सबसे पहले I would talk about the standard parameters. Okay, so talking about the standard parameters, I have an ellipse. I'm considering the ellipse to be somewhat like this. This is my point a comma 0. This is my point 0 comma b. This is the point minus a comma 0. This is my point 0 comma minus b. These 4 points are actually the vertices of the एलिप्स, ठीक है। ये वर्टिसेस है हमारे एलिप्स के, ठीक है। किस पॉइंट पे मतलब वो टर्न ले रहा है, किस पॉइंट पे एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज द एक्चुअल क्राइटेरिया टू बी अंडरस्टूड। नाउ दीज आर एक्चुअली द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। अदर देन दैट आई वुड आल्सो से दैट दिस पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट्स दैट आई हैड डिस्कस्ड अर्लियर, दीज आर नोन एज द फोकाई. Let me, these are AE comma 0. I would tell you how these are AE comma 0. These are my foci, right? Also I would just add on to some of more of the things about this curve. So the first thing about this point, this is 0 comma 0, and this is the center of the ellipse. That we are talking about x square by a square plus y square by b square equal to 1, right? सो अदर देन दैट एक और बात बता देते हैं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ पर कहीं डायरेक्ट्रिक्स लाइंस लाई करती हैं, ठीक है जी। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स लाइंस होती हैं, एंड दोज डायरेक्ट्रिक्स लाइन हैव द इक्वेशन टू बी x इक्वल टू माइनस a by e and x इक्वल टू प्लस a by e. These are the standard directrices of the ellipse. The standard ellipse, we are talking about the standard ellipse. These are the directrices. Okay, I hope that this is clear. This is our standard representation about this. Okay, other than that I would also say that the axis along which the ellipse is lying flat, यानी कि जिसके अराउंड वो थोड़ा सा पिचका हुआ है। अगर हम एक सर्कल लें और उसे थोड़ा सा पिचका दें, ठीक है, तो वो एलिप्सॉइड टाइप ऑफ शेप ले लेता है ना। अगर जैसे हम 3D में बात करें तो एक बॉल है, उसको दम लगाकर देखें तो वो एक एलिप्सॉइड टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर उसका हम कहीं पे प्रोजेक्शन वगैरह देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक एलिप्स काइंड ऑफ 2D स्ट्रक्चर मिलता है, राइट। तो इसमें यह बोलूंगा कि ये जो है ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एलिप्स का भाई ये चपटा वाला एक्सिस है, तो इसको बोल देते हैं मेजर एक्सिस। Okay, so this is known as major axis, and length of major axis in case of the standard ellipse is equal to 2a, and in the similar sense this axis is known as the minor axis, and minor axis का length होता है 2b। ऑब्वियस सी बात है, ये तो दिख रहा है कि माइनस a कॉमा 0 से a कॉमा 0 तक जा रहे हैं, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, एंड 0 कॉमा b से 0 कॉमा माइनस b पे जा रहे हैं, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b। आई होप दैट दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव आगे। ओके, ये हमारी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाती है एलिप्स की। यहाँ पर वही चीजें लिखी हैं, x इक्वल टू a बाई, x इक्वल टू माइनस a बाई। वर्टिसेस क्या है?
मेजर एक्सिस क्या है, अच्छा एक फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहा है, तो इसने ये कह दिया कि ये मेरी मेजर एक्सिस थी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इतनी है, बट मेजर एक्सिस मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड इट्स इंटरसेक्शन विद द डायरेक्ट्रिक्स लाइन, these are known as the foot of directrices, foot of directrices. This is the foot of directrix x equal to a by e, and this is the foot of directrix x equal to foot of directrix x equal to minus a by e, x equal to minus a by e, right? So okay, this is the entire idea. So this is the foot of the directrix. Let's move to the next point. The next point I had already discussed the minor axis, and I am discussing about the principal axis now. Combined, these principal axis is actually consisting of the major axis and the minor axis. For the short term, I am discussing major as capital M and minor as small m. Please bear with me about that. Center is that the point at which every chord of the conic drawn through it bisects itself. See, actually what happens is that I'm considering that this is the point such that if I consider any point over it, then its projection along the axis will pass through this point. Moreover, I consider that यहाँ से draw करें तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर हो जाएगा. दिस इज नोन एज सेंटर, ठीक है. द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड ऑफ द कोनिक ड्रॉन थ्रू इट, ठीक है, बाइसेक्ट करता है. दिस इज द सेंटर ऑफ द कोनिक. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Next is focal chord. I would love to discuss focal chord. Anyways, everybody knows that a chord that passes through the AE, 0. This is AE, 0. This is the focus. Any chord passing through it is the focal chord. This is the standard that is the standard exploration towards this thing. Okay, double ordinate perpendicular to this, perpendicular to the principal axis. Principal axis meaning major axis. जो भी लाइंस हैं, these are double ordinate. और जब ये डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास कर जाए, दिस इज नोन एज द लेटेस्ट रेक्टम. ठीक है, दिस इज नोन एज द लेटेस्ट रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का हम प्रूफ कर लेते हैं. इसको देखिए, हमारा डबल ऑर्डिनेट ऐसे, हमारा ये ऐसे है ना. दिस इज अवर एंटायर situation over here. Now this is 0, 0. This is AE, 0. Now what I need to calculate is distance between these 2 points. Okay, so since ये तो सेम वर्टिकल लाइन पे है, तो AE, नाउ मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि एक्चुअल में ये क्या है. एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो इसेंट्रिसिटी है उसका वैल्यू होता है रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड. दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट. ओके, सो जब ई स्क्वायर लिखूंगा, मैं ई स्क्वायर लिखूंगा तो 1 माइनस या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखूं, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर को आई कैन राइट एज ए स्क्वायर ई स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आई होप दैट इतनी चीजें तुम्हें याद होंगी. अगर याद है तो बहुत बढ़िया है. ठीक है, सो आई कैन राइट दिस थिंग एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. X square by a square is actually x is equal to AE. So here x square by a square is equal to a square minus b square by a square. Why? Because a square e square is equal to x square. For this point, I am considering for this point, and now I will calculate the y coordinate for this point. Okay, since y is a quadratic, if I solve this quadratic, I will get a single point. How did I come to that conclusion? 2 points, sorry. How did I come to that conclusion? I came to that conclusion through by numerous facts. I would simply say that this situation is equivalent to this. Now this is a quadratic. Since it is a quadratic, so it must have 2 roots. So I have 2 roots. Actually, I have 2 roots. So y is equal to plus minus b square by a. So one is the positive end is b square by, and the negative end is ae comma minus b square by a. So the distance between those two is 2b square by a. This is the length of the lattice rectum, right? Okay,
so let's move to the next point. Next point is position of point with respect to ellipse, or we can say power of point with respect to ellipse. If you don't have idea about power of point, you must go get through my revision checklist that I have just pinned up at the side, so do check it. Okay, so power of point with respect to ellipse, you'll find it in the cover page of the channel as well, in the home stage as well. Okay, so do watch that as well. Now power of point actually the power of point P lies outside inside as this condition. Okay, so every time मैंने ये बात हमेशा से बताई है कि जब भी हमें पावर ऑफ पॉइंट बताना है, जब भी हम पावर ऑफ पॉइंट निकाल रहे हैं, तो वो हमें पॉइंट की लोकेशन बता देगा। कोई पॉइंट वो एलिप्स के अंदर है कि बाहर है, इनसाइड और आउटसाइड। ओके, exterior or interior, I must say exterior or interior to be more exact. Now I know that this is x square by a square plus y square by b square equal to 1. ठीक है, and I even know that this is the point origin. So for this the s can be written as x square by a square plus y square by b square minus 1. Okay, and if I put the origin over here, इसका वैल्यू -1 आता है, यानी कि ये इंटीरियर पॉइंट्स के लिए दिस वैल्यू इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड नेगेटिव ऑन द पॉइंट। मतलब अगर पॉइंट एलिप्स पे लाई करे तो वो हमारा ऑब्वियसली 0 देगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पावर ऑफ पॉइंट x स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर 1 को सेटिस्फाई करेगा और पावर ऑफ पॉइंट 0 आ जाएगा। एंड इन एनी अदर केस वो एक्सटीरियर में लाई करेगा और उसका वैल्यू नेगेटिव, उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं और टेंजेंट का हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू रूट s1। दिस हैज बीन डिस्कस्ड अगेन इन द चैप्टर सर्कल, डू वॉच इट एंड एंजॉय। ओके, सो हमने बात की थी कि क्योंकि यहाँ पर रूट s1 है तो हमारे यहाँ से टेंजेंट की लेंथ के हिसाब से वी हैव टू गेट एन आइडिया ऑफ how is it actually happening. So actually what I was discussing was that the power of point depends upon this factor and this factor is s. I had discussed already about how to apply this, and let's move to the next point. Next is auxiliary circle. Now this may seem to be very new for some people. Some might have already discussed, some might have already studied this. This is the auxiliary circle. This is actually the way to determine the parametric point. First of all, I would just take a while explaining about this thing. See, if I know that the equation of an ellipse is somewhat like this, now to assume a parametric point, if I wish to assume a point on that, so for a simple reason, I know that one is sine square theta plus cos square theta. एंड आई इवन नो दैट x के साथ cos थीटा आने का बहुत मतलब वो रहता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द सर्कल चैप्टर। सिमिलरली y के साथ यहाँ पर sin थीटा आएगा, तो इसीलिए आई हैव रिटन इट इन दिस मैनर। ओके, सो सी आई नो दैट this is somewhat like this format, so I can consider the point on the ellipse to be a cos theta comma a b sin theta. Okay, so this is a rough idea. Okay, now I can prove it, and the proof comes through the auxiliary circle. Auxiliary circle. Now what is the actual idea about auxiliary circle, ये आप समझने की कोशिश करें। देखिए, यहां से मैंने एक एलिप्स ड्रॉ किया, ओके, और मैंने इस एलिप्स के लॉन्गर साइड के, जो मेरा लॉन्गर साइड है ना, जो मतलब लॉन्गर मेजर एक्सिस है, उससे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, ऐसे कुछ आएगा वो। ठीक है जी, दिस वुड कम इन समवट दिस फैशन आउट है, राइट। सो दिस इज 0,0। नाउ ये वाली चीज क्या है, 0,b, और ये वाली चीज है 0,a। सिमिलरली ये वाली चीज है 0,-b, एंड ये वाली चीज है 0,-a। तो एक्चुअल में if I have now what I come to know is that ये जो सिचुएशन है ना, ये जो सर्कल है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द ऑक्सिलरी सर्कल। क्यों?
क्योंकि इस पे तो मैंने जो पैरामीट्रिक पॉइंट एज्यूम किया वो था a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। आप a sin थीटा कॉमा b cos थीटा कहते हैं तो उसमें भी गड़बड़ नहीं है, वो भी सही है, बट मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि वो डिफरेंट एंटिटी बन जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम अगर यहां से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, राइट, तो इसका ये वाला कोऑर्डिनेट अगर ऐसे है, ठीक है, तो व्हाट आई कम टू नो, अगर ये थीटा एंगल है तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये बात हो रही है। ठीक है, ये a cos थीटा कॉमा a sin थीटा है, तो उन्हीं सेंसेस में ये उसके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये ऐसे ही जाएगा ना। बस डिफरेंस ये है कि इस वाले पॉइंट के लिए देखना है हमें, इस वाले पॉइंट का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट देखना है। सो दिस इज एक्चुअली द पैरामीट्रिक पॉइंट जो बताना है, जिस पॉइंट के लिए बताना है, तो उसमें a cos थीटा वुड रिमेन एज इट इज। ठीक है, ठीक है जी, a cos थीटा वुड रिमेन एज इट इज। तो ये देख लीजिए, यहां से मैंने जब ये ड्रॉ किया तो इस पॉइंट के लिए आई नो दैट द x कोऑर्डिनेट इज a cos थीटा and the y coordinate would be determined by this equation, the equation as x square by a square plus y square by b square is equal to 1। ठीक है, इससे देखा जाएगा जब इसमें x को a cos थीटा रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा b sin थीटा। दिस इज द पैरामीट्रिक पॉइंट एंड दिस इज डिटरमाइंड फ्रॉम द ऑक्सिलरी सर्कल, राइट। ठीक है, तो पैरामीट्रिक पॉइंट याद रखने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक सर्कल बनाना है, आप लोगों को सर्कल बनाना है, एंड सर्कल के ऊपर जो तुम्हारा पैरामीट्रिक पॉइंट मिलता है, द पैरामीट्रिक पॉइंट व्हिच यू गेट, यू नीड टू ड्रॉ इट परपेंडिकुलर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दैट परपेंडिकुलर विद द एलिप्स विल गिव मी द पैरामीट्रिक पॉइंट, एंड दैट इज एक्चुअली a cos theta comma b sin theta, right? So this is my auxiliary circle. Already I have got the concept. Now this is theta 0 से 2 पाई जा सकता है, थीटा 0 से लेकर के 2 पाई तक जा सकता है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट इज पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाई दिस ऑक्सिलरी सर्कल हैड कम टू एक्शन। Okay, so this is the point a cos theta a sin theta on an auxiliary circle, and this is on the ellipse. Now let me discuss about the next topic, that is line and ellipse. Okay, so obviously I have discussed about this thing as well, that for a line to exist on the ellipse there can be 3 possibilities, and the 3 possibilities are no point of intersection, 1 point of intersection and 2 point of intersection. I hope that ये बात समझ आती होगी आप लोगों को कि y is equal to mx plus c अगर मैं कोई लाइन कंसीडर करूं तो उसमें नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के साथ जो रिजल्ट है, ये वाली इस वाली में जब हम इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं तो इसमें d लेस देन 0 आ सकता है, d ग्रेटर देन 0 आ सकता है और d इक्वल टू 0 आ सकता है। और आपने ये सब देखा हुआ है यू गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा सर्कल का वीडियो देखा है तो आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से ये बातें समझ आ रही होंगी, ये मैं एज्यूम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर्कल में क्या है, बस एक डिफरेंस है कि a इक्वल टू बी हो जाता है, बाकी तो सब कुछ सेम टू सेम एज इट इज फंडामेंटली रहता है। ठीक है, तो लाइन एंड एलिप्स में मैं ये बात जरूर कहूंगा कि एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो उस पे टेंजेंट लाइन के लिए क्या होगा, फॉर y इक्वल टू mx प्लस c टू बी टेंजेंट, इफ आई वांट टू कैलकुलेट c देन आई कैन राइट एज एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस एक्स mx प्लस c स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx is equal to 1 by b square by a square. Okay, so b square plus a square m square x square plus 2ma square cx plus a square c square minus 1 is equal to 0. When I will put d to be equal to 0, what I will get is c is equal to plus minus root of a square m square plus b square, right? This is the idea, the entire scenario.
lies over here, that if c square is equal to this, then the mx plus c line is a tangent to the ellipse. Okay, fine about it. Now if I talk about the equation of chord through the ellipse, the equation of the chord through the ellipse, I know the parametric points are alpha, beta. Alpha means a cos alpha comma b sin alpha, and beta means a cos beta comma b sin beta. So in that scenario, I can talk about the equation of chord. So the equation of chord is similar to the circle chapter. So this is just a case when a is not equal to b. If I talk about circle, then the coordinate is x cos alpha plus beta by 2 plus y sin alpha plus beta by 2 is equal to cos of alpha minus beta by 2. Just a difference here, it was just a simple a. And for the ellipse, if I wish to talk about the ellipse, then it is x by a cos alpha plus beta by 2 plus y by b sin alpha plus beta by 2 is equal to cos of alpha minus beta by 2. This is the result that is to be remembered. बस इसमें कुछ नहीं है, इसको डिवाइड बाय a कर दो, इसको a कर दो, और y के साथ कोऑर्डिनेट में भी वैसे ही सीन हुआ कि a cos थीटा a sin थीटा था, अब यहाँ पर a cos थीटा b sin थीटा है, तो y वाले के साथ चेंज हो रहा है, तो y में बस एक b कर देने का था, एंड इट वाज डन. अब ये एलिप्स का बन चुका है. इसको कैसे याद रखना है ये भी मैं बता चुका हूं कि साइन के अंदर नेगेटिव आने से अल्फा और बीटा की पोजीशन से चेंज हो जाती है, चेंज हो जाएगा, वो एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब वो इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा. अगर आप ये चीज समझना चाह रहे हैं तो मैं ये भी आपके सामने एक बार और क्लियर करना पसंद करूंगा. देखिए क्या होगा अगर मैं लेट्स से मैं साइन में अल्फा माइनस बीटा कर दूं. अब देखिए ऐसा कुछ अगर सिचुएशन बनता है, ठीक है, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट अल्फा था, ये मेरा कोऑर्डिनेट बीटा था, ठीक है. तो उस केस में क्या बना कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऐसे थी, ठीक है. लेट्स से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड में ऐसा था, ऐसा कुछ आपको गलती लगी, ठीक है, आप लोगों ने ढंग से याद नहीं किया और आप गलत कराए, उसको आपने साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कर दिया, ठीक है. तो वो गलत क्यों होगा? क्योंकि वो अल्फा और वो बीटा, जब भी जिंदगी में अल्फा और बीटा को इंटरचेंज करेंगे आप, तो साइन उसका एक यही वाले फॉर्मेट में एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है. जब आप लगाएंगे, आप किसी भी दो पैरामीटर को चूज कर सकते हैं ना, तो बीटा माइनस अल्फा में क्या होगा, माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बनेगा, ठीक है, बाय 2, और वो एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेगा जो कि आपकी एक अनदर, दिस इज अ डिफरेंट लाइन ऑल टुगेदर, ठीक है, ये आपकी लाइन ही डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड गलत आएगी. इसीलिए आप याद रखें कि साइन में नेगेटिव नहीं आता है, कॉस में नेगेटिव आएगा. कॉस में नेगेटिव आएगा तो ये इक्वेशन ऐसा बनेगा कि पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं था, इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नेगेटिव में बस ये प्रॉब्लम है कि एक नेगेटिव साइन बाहर इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से गड़बड़ होगा. कॉस के लिए वो प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉस तो अपना मतलब वैसा फंक्शन है जिसमें आप नेगेटिव भी डालेंगे या पॉजिटिव भी डालेंगे उसमें सेम ही वैल्यू आएगा, नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता है कॉस में. तो इसीलिए ऐसा होता है, ये मैथमेटिकल लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाता, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट टू बी मोर एग्जैक्ट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो पता लग ही गया होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता लगी क्या होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन की कंडीशन क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर c इज प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंटायर का अंडर रूट. दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड. ओके, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड. बोलते आगे आएगा, और नाम लिया शैतान हाजिर. भाई टेंजेंट्स, सबसे पहला तरीका तो देख लिया होगा आपने, t इक्वल टू 0. पहले तो t इक्वल टू 0 ही लिखा है ना. t इक्वल टू 0 कैसे लिखा है, देखिए x1 y1 अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उसका एलिप्स, जब हम एलिप्स पे ये पॉइंट है तो x1 y1 पॉइंट अगर एलिप्स पे है तो अगर एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 पर है, ठीक है, तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 पर है कोई पॉइंट, तो इफ द पॉइंट लाइज ऑन एलिप्स तो t इक्वल टू 0 डायरेक्ट लगा सकते हैं, और x स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय x(x1) and y square is replaced by y(y1) is equal to 1. This is the equation of
equation of tangent. Okay, in this similar scenario I had already discussed about the second part. This is discussed now. इसी में अगर मैं बोलूं कि मेरा x1, y1 इस फॉर्मेट में नहीं दिया है, दैट इज गिवन इन a cos थीटा, b sin थीटा वाला फॉर्मेट, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब उस केस में x a cos थीटा बाय a स्क्वायर प्लस y b sin थीटा बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b is equal to 1. This is the equation of tangent to the ellipse at point a cos theta comma b sin theta, right? चलिए ये भी हो गया, ठीक है। इसमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा बीटा, हम अल्फा और बीटा से लिख सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, इसमें भी वही लॉजिक है, देख लो यार ध्यान से। अगर हम बीटा माइनस अल्फा करेंगे तो वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे, और हमारा अगर कोई भी दो टेंजेंट है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो एक दूसरा पॉइंट नहीं जनरेट होता है, ठीक है। तो इसमें भी याद रखें, जैसे आपने उसमें सॉरी सर्कल में याद रखा था, तो दैट वाज a cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, कॉमा a sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 था। बस इधर b कर देना उसका, साइन था ना यार, सॉरी messed up it, I'm sorry, I had unfortunately messed it all. So this was sin of alpha plus beta by 2 upon cos of alpha minus beta by 2. This is the result, this is the point of intersection of tangent. Since I have already proved this scenario in the chapter of circles, I don't find any point discussing it, ठीक है। Okay, so next point, नेक्स्ट इज नॉर्मल्स, ठीक है। तो मैंने एक बात इंपॉर्टेंट पैराबोला के लिए मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि जब भी आपके पास टेंजेंट आप किसी भी कर्व पे लगाएंगे, जब भी आपके पास कोई टेंजेंट दिया गया है तो उससे आप नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। उस केस में ये वाला सिनेरियो याद करो या ना करो, है ना, डजंट मैटर। तुम तो यार ये चीज याद रखो कि अगर कोई भी कर्व है और तुम्हें उसके ऊपर एक टेंजेंट पता है तो नॉर्मल कैसे लिखोगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से सेटिस्फाई करा दो, ठीक है। जैसे x1 y1 से अगर मैं टेंजेंट लाइन लिखूं किसी एलिप्स पे, तो एलिप्स के लिए टेंजेंट लाइन अभी डिस्कस किया था, x1 बाय स्क्वायर प्लस y1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें कुछ नहीं करो, इसमें तुम थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर देते हैं, bx1x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर x1x प्लस a स्क्वायर y1 y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखने के लिए एक फंडा बताया था स्ट्रेट लाइन का, देख लेना वीडियो में। अब ऐसा नहीं है पब्लिसिटी करता हूं मैं, मुझे पता है कि मैंने कब कौन सी चीज बताई है और क्यों बताई है। देयर इज अ रीजन कि मैं इन चीजों को ऐसे बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें एक्चुअल में रिलेटेबल है, ठीक है। अब इसमें x1 y1 सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ना, एलिप्स पे तुम अगर यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, हालांकि ये टेंजेंट बना नहीं, ठीक है, तो इस पे अगर तुम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करो तो नॉर्मल इधर से ही जाएगा ना, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल इज द पॉइंट इटसेल्फ, ठीक है। तो जब तुम इसमें x1 y1 डालोगे तो एक बार मैं इसी लाइन में x1 y1 दिखा देता हूं तुम्हें, तो y1 x1 माइनस b स्क्वायर x1 y1 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ x1 y1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक इससे हम इक्वेशन ऑफ ये लैम्डा निकल जाएगा जैसे ही, तो तुम इस वाली चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको लिखने का तरीका a स्क्वायर y1 x माइनस बी स्क्वायर x1 y इज इक्वल टू, सॉरी है ना, वो क्या हो गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स x1 y1। अब x1 y1 से डिवाइड कर लो, तो ए स्क्वायर x बाय x1 माइनस बी स्क्वायर y बाय y1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैंने इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताया था 1 माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर का वैल्यू भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है इससे, ठीक है, वो इसमें पुट कर दिए,
जैसे ही पुट कर दिए तो ये a² के बराबर आ जाएगा, तो a² x/x1 माइनस b² y/y1 इज इक्वल टू a². ये दूसरे तरीके से हो गया जब आपको इसेंट्रिसिटी दी है. हालांकि आपको जब भी कोई इसेंट्रिसिटी टाइप पैरामीटर है आप उसे ए बी में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आप अपने इक्वेशन अपने सोल्यूशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो. ठीक है, कोऑर्डिनेट में यही एडवांटेज है कि अगर हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड भी इंफॉर्मेशन है तब भी हम उससे काफी चीजें ग्रैस्प आउट कर सकते हैं, हम काफी चीजें उसमें समझ सकते हैं. ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं. हाँ, इससे पहले मैंने एक और पॉइंट भी बताया हुआ है कि ये वाला चीज हमें सारी बातें x² प्लस y² इक्वल टू 1 के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें a इज ग्रेटर देन b. जब भी मतलब a ग्रेटर देन, ये वाला साइड, जो भी साइड यहाँ पर डिनोमिनेटर ग्रेटर है वो उसी साइड को इंक्लाइंड होता है. ये भी मैंने बताया हुआ है. अगर यहाँ पर b ग्रेटर देन a होता, b ग्रेटर देन a होता तो एलिप्स इस तरीका का नहीं बनता, एलिप्स कुछ इस प्रकार का बन जाता. ठीक है, इसमें x² प्लस y² इक्वल टू 1 तो ठीक है, बस b ग्रेटर देन a बन जाता है. ठीक है, और ऐसे कंफ्यूजन मतलब ऐसे पॉइंट्स पे अराइज कर जाते हैं. जब मैंने JEE एडवांस दिया था उसमें भी मतलब इसेंट्रिसिटी इसमें ऐसा पंगा हो जाता है ना कि हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होता है और जब b ग्रेटर देन नहीं होता तो इसेंट्रिसिटी नेगेटिव का रूट आ जाता है. तब हमें ये थॉट लगाना है कि उस केस में फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट ये JEE मेन में नहीं आएगा कभी भी, बट ऐसा है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि अगर b ग्रेटर देन a है तो ये वाली चीज पॉसिबल है कि ये वर्टिकल एलिप्स हो जिसकी वजह से ये ऐसा कुछ सिनेरियो जनरेट हो रहा हो. ठीक है, बढ़िया. हाँ जी, तो ये हो गया. अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप, नो नीड टू रिमेम्बर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a² m² प्लस b². इसी में मॉडिफिकेशन करनी है. इसमें y माइनस mx है ना, y माइनस mx इज सम स्टफ. ठीक है, तो mx प्लस my इस वाली चीज को लिख लोगे आप my प्लस x. ठीक है, इज इक्वल टू सम स्टफ, और फिर उसके बाद उसे रीअरेंज करोगे तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा. हालांकि मैं हमेशा कहूंगा नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारा ज्यादातर काम इसका आएगा और किन्हीं केसेस में x1 y1 को जब आप पुट करेंगे तो इसका आएगा. ठीक है, मैं कहूंगा नॉर्मल की इक्वेशन याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तरीका आपको पता है ना निकालने का तरीका पता है तो इसमें हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं. 5 मिनट्स नहीं, हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए. 5 मिनट्स का तो टाइम ही नहीं होता किसी भी क्वेश्चन में. ठीक है, तो ऐसा है कि हाँ मतलब हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे. 5 मिनट्स में तो मैंने बताया ना, वो डिफरेंट बात हो जाती है. ठीक है, चलिए, मैंने तो वैसे 5 मिनट्स मैंने भी लगाए होंगे. ठीक है, डायरेक्टर सर्कल जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्टर सर्कल का मीनिंग क्या है. डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स. ठीक है, अगेन थोड़ा सा मतलब स्कोप के बाहर रहता है. ठीक है, तो इसमें क्या है, x² प्लस y² इज इक्वल टू a² प्लस b². ठीक है, ये मेन के स्कोप के बिल्कुल बाहर बात है. ठीक है, हालांकि इसको याद कर सकते हैं. मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा, एक बात मैं जरूर मतलब इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो भी डायरेक्टर सर्कल है वो पहली बात इस एलिप्स के बाहर रहेगा और दूसरी बात इस एलिप्स के सेंटर से कोएंसेंट्रिक होगा. ठीक है, लॉजिकली सोचो, इसका सेंटर भी 0,0 हो. ठीक है, इसका भी सेंटर 0,0 है, रेडियस रूट ऑफ a² प्लस b² है, जस्ट वही डिफरेंस है. बाकी सारा का सारा पॉइंट सेम है, यही सेंटर है. और ये किसके लिए बात हो रही है, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1 के लिए हो रही है. अच्छा, डू नोट दैट अगर ये ऐसा वाला एलिप्स भी हो, ठीक है, इसमें a ग्रेटर देन b वाला तो कोई सीन ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में एक सिमेट्रिकल फिगर है, अपने में ये सिमेट्रिक होगा. एक सर्कल हमेशा किन्हीं दो कर्व से सिमेट्रिक हो सकता है. ठीक है, ये हमारा डायरेक्टर सर्कल है. इस पे जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस जब ड्रॉ करते हैं तो लेट्स से मैं इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए. ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट यहाँ कहीं से आ गया. ठीक है, तो ये 90 डिग्री जब भी इंक्लोज होने लग जाएगा तो वो डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा. ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्टर सर्कल का कोऑर्डिनेट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है. अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ a² प्लस b² cos थीटा कॉमा रूट ऑफ a² प्लस b² sin थीटा.
हालांकि मुझे नहीं लगता कभी जरूरत पड़ेगी, हार्डली देयर इज नो नीड, ठीक है। पर अगर डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन ही पता है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ एलिप्स को हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। काफी मतलब हो सकता है शॉर्ट लगे, बट है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे काफी अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे, जरूर करेंगे एक बार। सारे कोनिक्स हमने अभी तक कर लिए हैं, अब हाइपरबोला बचा है, हाइपरबोला को जल्द करेंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करो। आप लोगों का प्यार मुझे मोटिवेट करता है बेटर करने के लिए हर टाइम, ठीक है। मैं तैयार रहता हूँ हर टाइम। कई बार कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बीइंग अ स्टूडेंट मुझे मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। हमेशा मैं यही ट्राई करता हूँ कि अपना बेस्ट दे सकूं, बेस्ट पॉसिबल दे सकूं। तो अगर कोई गलतियां हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी तो मतलब बढ़िया है, अच्छा, और बढ़िया से मचाओ, पढ़ो और फोड़ो, ठीक है। अंटिल देन, बाय बाय, सी या, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।